Welcome class 11. Today we are going to start a new chapter number 8, company meeting second. Before that, we had seen the chapter number 7, company meeting first. In there, we had learned what is the meaning of meeting. हमने देखा था उसमें कि मीटिंग के मीनिंग क्या होते हैं एंड व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ द मीटिंग. In there we had also seen the importance of the company meeting, means कंपनी के जो मीटिंग्स होती हैं उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, why the company should always conduct the meeting for the reason to analyze our problem and the requirements of meeting. This all thing we had learned in our previous video. Thereafter we had also learned about the essentials of a valid meeting, means what are the things in need or necessary for the valid meeting. So we had seen there it should be duly convened, means should be properly conducted by the proper authority. Thereafter it should be properly constitute होनी चाहिए by the quorum, chairman, and there should be the proper power and duties of the chairman. Okay, under the section 104. Thereafter we had also learned the essentials of a valid meeting properly conducted. It should be properly conducted. Meeting properly conduct होनी चाहिए, means all the members of the meeting, what are the contents of the meeting, it should be very perfect, like proxy, motion, votings, resolutions, minute. This all term very clear in regard of the meeting. Okay, after the meeting it should secretary should properly prepare the minute and send to the each members of the company. ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी थी. ओके, दैट वाज द कंपनी मीटिंग सेकेंड, जो कंपनी मीटिंग फर्स्ट था. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ द मीटिंग, मीन्स कौन कौन से टाइप्स की मीटिंग्स होती हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी in our screen 8.1 has given the types of meeting is there. In there we will see there has the three kinds of meeting. टाइप्स ऑफ मीटिंग में हम देखेंगे, एक कंपनी मीटिंग की बात करें, सो देयर हैज़ थ्री काइंड्स ऑफ मीटिंग. फर्स्ट वन इज द शेयर होल्डर्स मीटिंग, द एक्टर्स मीटिंग एंड क्रिएटर्स मीटिंग. ओके, इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग इट हैज़ द टू पार्ट्स, जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग. ओके, शेयर होल्डर्स मीटिंग के टू पार्ट्स होते हैं, जनरल मीटिंग एंड class meeting. And in general meeting there has also the two kinds. First, annual general meeting and extraordinary general meeting. You can see on your screen they has given the 8.1 types of meeting. Thereafter the 8.1.1 shareholders meeting. This is the first kinds of the meeting. Okay, in shareholders meeting you can also see there has the two kinds, a general meeting, b class meeting. Now in a general meeting there has two kinds, annual general meeting and extraordinary general meeting. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट काइंड्स मीटिंग का फर्स्ट टाइप हो गया शेयर होल्डर मीटिंग. नाउ देयर आफ्टर द डायरेक्टर्स मीटिंग 8.1.2. दिस इज द अनदर काइंड्स ऑफ द टाइप्स ऑफ मीटिंग. सो in directors meeting it also has the two parts, board meeting and committee meeting. And the third types of the meeting is creators meeting. Okay, thereafter we will see the function of secretary related with the annual general meeting. means secretary के क्या functions होते हैं in regard of the annual general meeting. annual general meeting से related secretary को क्या क्या function होते हैं, means कौन कौन से work perform करने पड़ते हैं for the proper conduction of the annual general meeting. Thereafter we will also see the distinction between the shareholders meeting and board meeting and annual general meeting and in the extraordinary general meeting. Okay, now let's start our introduction. First, in the joint stock company there is a separation of ownership and management, hence there is a need to conduct the meeting of shareholders and board of directors. Several types of shareholder meetings and director meetings are conducted by the company. Yes, guys, obviously, joint stock company is a very vast company, so there is members are very
स्कैटर्ड एवरीवेयर। जो मेंबर्स होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, ये वो हर जगह क्या होते हैं, स्कैटर होते मीन्स फैले होते हैं। सो द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द ओनर एंड दे कैन नॉट manage the company their own self. So for that they elect their representative in regard of the management. कंपनी की मैनेजमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, एक मैनेजमेंट मतलब कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, और वो डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं. सो दैट्स व्हाई देयर इज द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. हेंस देयर इज अ नीड. तो दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड टू कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब जो कंपनी की शेयर होल्डर है, उनको जो कंपनी में जो भी कंपनी का जो प्रोसेस है, जो भी कंपनी की एक्टिविटीज़ है, उसको पता कर चलने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी हैव टू कंडक्ट द मीटिंग. ओके, एंड ऑल्सो दे हैव टू कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो. Okay, so there are the several kinds of the shareholders meeting and directors meetings are conducted in the meeting. अलग अलग काइंड्स की शेयर होल्डर्स मीटिंग रखी जाती है, डायरेक्टर्स मीटिंग रखी जाती है, जनरल मीटिंग रखी जाती है, क्लास मीटिंग रखी जाती है फॉर द शेयर होल्डर्स. एंड इन द जनरल मीटिंग दे आल्सो कंडक्ट द एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. इन एंड फॉर द डायरेक्टर्स मीटिंग दे कंडक्ट द बोर्ड मीटिंग, कमिटी मीटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So today we will see the different types of meeting. So first you can see there has a one chart has given company meeting. Okay, in company meeting there has given the three kinds. As I already told you, the first kind is the shareholder meeting. You can see on your screen, in shareholders meeting there has the two parts. First is the general meeting and second one is the class meeting. In general meeting you can see there has the two kinds, annual general meeting and extraordinary general meeting. Okay, so this is the types of the shareholder meeting. Now you can see second types has given the directors meeting. ओके, दिस इज़ द डायरेक्टर्स मीटिंग. ये डायरेक्टर्स के लिए होती है. ओके, दिस मीटिंग ओनली कंडक्ट बाय द डायरेक्टर्स एंड देयर हैज़ ऑल्सो द two types of the directors meeting, the board meeting and the committee meeting. Okay, so this is the another types of the company meeting, directors meeting. Now third meeting is the creditors meeting, which is conducted by the कंपनीज क्रेडिटर, जो कंपनी के क्रेडिटर्स के थ्रू कंडक्ट की जाती है. वे आर द कंपनीज, जो कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं वो वहाँ पर होते हैं. ओके, मीन्स मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट अलाउड टू कंडक्ट दिस मीटिंग. ओनली द क्रेडिटर, जो भी कंपनी के डिबेंचर होल्डर है, जो भी बॉन्ड्स होल्डर है, एंड जिन्होंने कंपनी ने जिससे लोन लिए हैं, सो दे कम इन दैट मीटिंग एंड दे कंडक्ट फॉर देयर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट में उनसे कंपनी से रिलेटेड जो भी उनके मैटर्स होंगे उसके लिए वो मीटिंग में आएंगे. ओके, सो दिस इज़ द अनदर काइंड्स ऑफ द कंपनी मीटिंग. सो टुडे टुडे वी विल सी कि शेयर होल्डर्स मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग एंड क्रेडिटर्स मीटिंग आज हम ये देखेंगे. और ये शेयर होल्डर्स मीटिंग जो होती है किसके लिए होती है, दिस इज़ फॉर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर्स मीटिंग, दोज आर द डायरेक्टर ऑफ द मीटिंग, एंड द क्रेडिटर मीटिंग, दोज आर द क्रेडिटर्स ऑफ द मीटिंग, लाइक द डायरेक्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, डिपॉजिट होल्डर जो भी हैं कंपनी के. ओके, नाउ let's start our the shareholders meeting. This is the first types of the company meeting. In shareholder meeting 8.1.1, in there we can see the shareholder participate in the management of the company. They exercise their right to manage the company by participating in the shareholders meeting. Shareholders meetings are arranged to discuss on various issues and arrive at decision. Okay, yes, we know that shareholders are the involved in the management of the company. They can participate in the management of the company. Obviously they are the owner of the company, so they exercise their rights to manage the company by participating in the shareholders meeting. वो shareholder meeting में कम आके shareholder meeting में अटेंड होके उसमें पार्टिसिपेट लेके वो उनके जो अधिकार है वो रख सकते हैं. एंड दे कैन ऑल्सो गिव द एडवाइस भी कर सकते हैं इन रिगार्ड ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी को मैनेजमेंट करने के तौर पे, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके तौर पे वो कंपनी को एडवाइस भी कर सकते हैं. ओके, सो थ्रू दैट दे कैन attend the meeting. The shareholders meeting are arranged to discuss on various issue and arrived at decision. शेयर होल्डर मीटिंग की जाती है जो भी बहुत सारे डिस्कशन रिलेटेड होते हैं मेंबर्स से,
उस पर डिस्कस करने के लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग की जाती है. ओके. In shareholders meeting there has the 2 points, the general meeting and in the and class meeting. Now first general meeting you can see here, these are the meeting of the equity shareholder of the company. ये जो जनरल मीटिंग होती है किसके लिए होती है? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मीन्स जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं, दोज आर द ओनर ऑफ द कंपनी, मीन्स जो कंपनी के ओनर्स माने जाते हैं, ये मीटिंग उनके लिए होती है. दे आर द 2 types ऑफ द जनरल मीटिंग. As I told you, the first one is the annual general meeting and another one is extraordinary general meeting. Now annual general meeting ये साल में बस एक बार ही कंडक्ट की जाती है. ओके. सो इक्विटी शेयर होल्डर मीटिंग जो होती है वो एनुअल जनरल मीटिंग के थ्रू, इसमें कौन आएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स ही आएंगे. एनुअल जनरल मीटिंग किसके थ्रू कंडक्ट की जाती है? बाय द इक्विटी शेयर होल्डर एंड इट हैज़ कंडक्टेड ओनली वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर. ओके. ये कब कंडक्ट की जाती है? ये सिर्फ एक बार साल में कंडक्ट की जाती है. सो वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, इट इज़ हेल्ड वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर. मीन्स जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है इट इज़ कंडक्टेड ओनली वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर. ओके. नाउ व्हाट आर द पर्पस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, मीन्स इसके पर्पस क्या है एनुअल जनरल मीटिंग के? सो एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर इज हेल्ड एवरी ईयर, हर साल कंडक्ट की जाएगी, बट वंस टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड टू डिस्कस एंड टू टेक डिसीजन ऑन वेरियस इशू सच एज. नाउ पहले हम समझ लेते हैं कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था थ्रू आउट द ईयर, मीन्स व्हाट काइंड्स ऑफ द प्रोग्रेस, व्हाट काइंड्स ऑफ द अचीवमेंट्स कंपनी हैज़ असेस, कंपनी ने कौन कौन से अचीवमेंट किए हैं, वो सारी चीज़ें, कंपनी का प्रोग्रेस कैसा था, उसको रिव्यू करने के लिए, उसको देखने के लिए हर साल कंपनी को हर साल क्या करना पड़ा? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंपनी क्या करती है? एक एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करती है. एंड देन कंपनी हैव टू डिस्कस एंड टेक डिसीजन. कंपनी को बहुत सारे डिस्कशन भी करने पड़ते हैं, बहुत सारे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं ऑन डिफरेंट सेवरल पॉइंट्स पे. बहुत सारे ऐसे सेवरल पॉइंट्स बातें होती है, उस पर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उस पर कंपनी को क्या करने पड़ते हैं? डिसीजंस लेने पड़ते हैं. सो व्हाट आर दैट डिसीजंस, वो कौन से डिसीजन होते हैं? व्हाट आर द पॉइंट्स जिस पे कंपनी को डिस्कस करना पड़ता है एंड द कंपनी हैव टू टेक द डिसीजन. सो दिस इश्यूज आर गिवन देयर. फर्स्ट, टू अडॉप्ट द एनुअल अकाउंट्स, द डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. कंपनी का जो एनुअल अकाउंट होता है या फिर जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स जो रिपोर्ट होती हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर होता है कंपनी का, लास्ट में जो उसका फाइनल अकाउंट बनता है, जो बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, उसकी जो ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, उस पर डिस्कस करने के लिए एंड फॉर टेकिंग द पर्सपेक्टिव डिसीजन, उस पर एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है? कंपनी हैव टू कंडक्ट द एनुअल जनरल मीटिंग. नाउ कंपनी हैव टू आल्सो डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है, मीन्स हाउ मच परसेंट कंपनी have to give dividend to their shareholder. So for that discussion the company have to attend the annual general meeting and company have to conduct the annual general meeting. Now thereafter, to elect the directors in place of the retiring director. If any directors are going to retire, so the company have to elect the new directors at the place of the retiring director. So for appointing another director, company have to discuss on these points in the annual general meeting. Okay. Now to appoint auditors and fix their remuneration. Thereafter company have to appoint the auditors. कंपनी को क्या करना रहता है? कंपनी को ऑडिटर्स अपॉइंट करना रहता है एंड द कंपनी हैव टू फिक्स देयर रेमुनरेशन, मीन्स फॉर फिक्सिंग देयर रेमुनरेशन, सैलरी, वेजेस, whatever, जिस बेसिस पे if company are paying paying auditor on the commission basis. So this all thing, इस सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए, फॉर फिक्सिंग दिस ऑल थिंग, फॉर डिसाइडिंग दिस ऑल thing, company have to conduct the annual general meeting. So for that the company have to conduct the annual general meeting to discuss and to take the decision
on the these points. Now, fifth point is to review the progress and performance of the company. And लास्ट में कंपनी ये भी एक चीज़ देखती है कि हमारी जो कंपनी है उसने पूरे साल में कितना प्रोग्रेस किया, उसका परफॉर्मेंस कैसा था होल द ईयर। मतलब लास्ट ईयर हमारी कंपनी ने क्या, मतलब पूरी ये जो साल हमारा जो बीत रहा है इसमें कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस कंपनी का था, कंपनी का प्रोग्रेस कैसा था, पहले लास्ट ईयर से अच्छा था क्या, या फिर थोड़ा उससे डल था, और फिर उसके क्या क्या रीज़न थे, ऐसा क्यों हुआ। सो सारी चीज़ें कंपनी क्या करने पड़ते हैं, रिव्यू करने पड़ते हैं, रिवाइज करने पड़ते हैं इन दी एनुअल जनरल मीटिंग। सो this is the some reasons for that the company have to attend or conduct the annual general meeting to discuss and to take the final decision in regard of the these several points. Okay, now there has a legal provision, so legal provision we will see in the next video. आज के लिए इतना ही, thank you, goodbye.